Start with the greatest name of Almighty Allah, who is most kind and most merciful. Assalamu alaikum. Dear friends, today we are going to discuss the most important topic of political science that is also included in sociology as well as in philosophy of law, social contract theory. Basically, social contract theory is given by three philosophers: Rousseau, who is a French philosopher, Thomas Hobbes, and John Locke. These both are English philosophers. These both belongs to England. As previously we have defined Rousseau's social contract theory and Thomas Hobbes' social contract theory, so today we are going to discuss the social contract theory of John Locke. John Locke has lived from 1632 to 1704. Basically, John Locke was a doctor by his profession, but he was influenced by his patient Ashley Cooper, who was his patient in England. John Locke is also called the father of indirect democracy, and he is the supporter of Republicans, whereas he is the anti-royalist. Whereas the Thomas Hobbes has supported the royalist, he was anti-royalist, and Republicans, he supported the Republicans. Why he supported Republicans? There was two reasons. Because his father and mother also supported the Republicans. He was an ordinary class of people, so he supported the royalist. And next reason, that Ashley Cooper, from whom he influenced, he inspired and started his journey of philosophy, he was also anti-royalist and supporter of Republicans. He witnessed the Civil War of 1642 that lasted for 9 years from 1642 to 1651. He has witnessed this war, but this war was already predicted by Thomas Hobbes. Thomas Hobbes की थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि there was fear. What fear? One was the fear of civil war, and second fear was invasion of Spain. अब स्पेन ने तो इन्वेजन नहीं किया, लेकिन सिविल वार जो प्रिडिक्ट की थी थॉमस हॉब्स ने, वो जॉन लॉक के दौर में हो गई. अब जॉन लॉक तब 10 साल का था जब ये वार हुई, और इस वार में हिज फादर एंड मदर बोथ टुक पार्ट एज अ रिपब्लिकन्स. सो he also supported the Republicans and he was anti-royalist. So he gave his social contract theory. But before going to his social contract theory, we are going to discuss the human nature, Locke's human nature. What was his prediction? What is his concept regarding the human nature? ये क्या कहता है कि since the inception human nature क्या है और लोग कैसे रहते थे ज़माना कदीम में. He says good and peaceful man बाय नेचर इज़ गुड एंड पीसफुल. जो आदमी, जो इंडिविजुअल्स सबसे पहले इस दुनिया में आए थे, वो पीसफुल थे, वो बाय नेचर बहुत ही पीसफुल थे, कोऑपरेटिव थे, गुड थे, फंडामेंटली डिसेंट और कोऑपरेटिव थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे और डिसेंट तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे. स्टेट ऑफ इक्वलिटी एंड ऑल पीपल वर फ्री. दे वर एक्सरसाइजिंग द कंप्लीट लिबर्टी, दे वर फ्री एंड देयर वाज इक्वलिटी. Nobody was having any kind of supremacy over other, influence over other. Nobody used to exercise his powers to others. Their actions were for pleasure. लेकिन उनके जो एक्शंस थे, जो उनके काम थे, वर फॉर द प्लेयर, अपनी खुदगर्जी के लिए थे. वो खुदगर्ज थे नहीं, लेकिन वो अपनी सेटिस्फिकेशन चाहते थे, तो उनके जो एक्शंस थे वो उनको सेटिस्फाई करने के लिए थे. अदरवाइज दे वर गुड, दे वर नॉट वायलेंट, दे वर नॉट ब्रूटल, एज थॉमस हॉब्स हैज प्रेडिक्टेड इन हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. तो ये उसके खिलाफ जाता है, ये उससे खिलाफ रखता है कि मैन बाय नेचर वाज फ्री, डिसेंट, कोऑपरेटिव. दे हैड सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन उनमें सेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी थी. जो लोग सबसे पहले आए थे, जबकि थॉमस हॉब्स कहता है कि वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी की सेंस नहीं थी, रिलेशंस की कोई सेंस नहीं थी. जो लोग थे वो ब्रूटल थे, क्रूअल थे, एक दूसरे को मारते थे, उनके बीच बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स थे. तो रोसो, ये जो जॉन लॉक है, वो जॉन लॉक कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं था. दे हैड अ सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, उनके पास सेंस ऑफ प्रॉपर्टी की सेंस थी. दे वर सफिशिएंटली रैशनल टू अंडरस्टैंड गुड एंड बैड, और उनके पास ये सेंस भी थी कि वो अपना बुरा और अच्छा समझ सकते थे कि दैट व्हाट इज़ गुड फॉर देम, व्हाट इज़ बैड फॉर देम. दे वर नॉट अनसेंसिबल, दे वर नॉट इरेशनल, दे वर रैशनल, दे वर क्वाइट सेंसिबल एंड कोऑपरेटिव, दे वर पीसफुल. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, लॉक्स स्टेट ऑफ नेचर. अब उसकी स्टेट ऑफ नेचर क्या है? अब ये तो हमने डिस्कस किया स्टेट ऑफ ह्यूमन की नेचर जो थी वो कैसे थी, लेकिन अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर के. स्टेट ऑफ नेचर क्या थी, क्या नेचर थी स्टेट की, लोग कैसे रहा करते थे आपस में. वो कहते हैं प्री पॉलिटिकल बट नॉट प्री सोशल. जो स्टेट थी, जो
हालात थे, कंडीशंस जो थी वो प्री पॉलिटिकल तो थी लेकिन प्री सोशल नहीं थी। वहाँ पे पॉलिटिक्स तो नहीं थी लेकिन सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, लोग आपस में रहा करते थे। एज अ कम्युनिटी दे यूज टू लिव अमंग देमसेल्व्स एंड देयर वाज अ सेंस ऑफ सोसाइटी। Though there was not politics, there was no any kind of government, no any kind of influential powers, no any kind of any restriction, but there was a society, there existed a society। अब पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? एन इवेंट, एन स्ट्रगल, अ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे ये स्ट्रगल कॉन्फ्लिक्ट की कोई बात नहीं थी अकॉर्डिंग टू लॉक। लॉक कहता है ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो एक सोसाइटी में रहते थे और वो सोसाइटी को कैसे गवर्न करते थे, वो सोसाइटी कैसे चलती थी अंडर द कंट्रोल ऑफ नेचुरल लॉ। उनके पास कोई लॉ तो नहीं था लेकिन वो अपनी सेंस से, अपने रीजन से, अपनी कॉन्शियस से वो उसके लॉज जो थे वो चलाया करते थे। वो अब उनके ऊपर कोई होता तो नहीं था कि उनके ऊपर लॉ इन्फोर्स करे या लॉ को प्रिडिक्ट करे या लॉ की जो है इंटरप्रिटेशन करे, लेकिन वो खुद ही एवरी मैन वाज सॉवरेन। तो हर कोई अपने अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारा करता था। स्टेट ऑफ पीस एंड गुडविल, वहाँ पे जो थी वो बिल्कुल पीस था, कोई किसी को हार्म नहीं पहुँचाता था। और देयर वाज गुडविल, हर कोई एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचता था, कोई भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था, कोई भी किसी को हार्म नहीं पहुँचाता था। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इक्वलिटी इन पर्सनल लिबर्टी। जो लिबर्टी थी, एवरी इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी यूज टू एंजॉय द लिबर्टी। लिबर्टी हर एक शख्स को, हर एक फर्द को कायम थी। वो हर एक शख्स उनमें से जो था वो लिबर्टी एक्सरसाइज करता था, एंजॉय करता था। अ सिविल सोसाइटी विदाउट गवर्नमेंट, एक सिविल सोसाइटी थी। हाँ, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी लेकिन सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं थी लेकिन सोसाइटी का वजूद था। तब भी लोग एक सोसाइटी के एक ग्रोह की फॉर्म में रहा करते थे। एवरी मैन वॉज इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। अब some conveniences were there. What were the conveniences? Every man was interpreter of law. हर शख्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, every individual makes his own laws and enforces his own laws over himself, over his family or over his tribe। तो जो सोसाइटी में लोग रहा करते थे वो उनमें से हर एक लॉ को खुद ही इंटरप्रेट करता था। एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर टू इन्फोर्स लॉ, जबकि वहाँ एग्जीक्यूटिव कोई पावर था ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो ये तो प्री पॉलिटिकल स्टेट थी। ये तब की बात हो रही है जबकि कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी। सबसे पहले इंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है कि जब पहले लोग आए थे वो कैसे रहा करते थे। एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर टू इन्फोर्स लॉ, वहाँ पे कोई लॉ इन्फोर्स करवाने वाला नहीं होता था। एब्सेंस ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट लॉ, जुडिशरी भी नहीं थी। ये तो ऑर्गन्स हैं स्टेट के, जब स्टेट का वजूद आएगा तभी एग्जीक्यूटिव भी आएगी और जुडिशरी भी और गवर्नमेंट भी फिर आ सकते हैं। लेकिन ये तो प्री पॉलिटिक्स बात हो रही है, तो वहाँ पे कोई लॉ को इंटरप्रिटेट करने वाला भी नहीं था। डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन, तो इसमें कन्फ्यूजन आई, इसमें डिसऑर्डर आया। डिसऑर्डर क्या आया कि लॉ कौन सा ठीक है, कौन सा लॉ बनाना चाहिए, कौन सा लॉ नहीं बनाना चाहिए। अब मैंने कहा मेरा लॉ जो है वो इन्फोर्स होना चाहिए, किसी और ने कहा मेरा लॉ ठीक है, किसी और ने कहा मेरा लॉ ठीक है, और किसी ने किस तरह को लॉ को बनाया, किसी ने किसी तरह लॉ को बनाया। तो एक डिसऑर्डर, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई, जिसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वजूद में आ रहे थे और जो पीस थी उनकी वो उनको हार्म पहुंच रहा था। उनकी पीस को, स्टेबिलिटी जो उनकी एक एनवायरनमेंट की, जो स्टेट की, जब सोसाइटी की स्टेबिलिटी थी, वो स्टेबिलिटी को हार्म पहुंच रहा था। और सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, जाहिर सी बात है अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो लाइफ को हार्म पहुंच सकता है। तो इस हार्म से अवॉइड करने के लिए लॉक्स नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लोग कॉन्ट्रैक्ट में आए कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, हमें एक लॉज बनाने चाहिए, एक इन्फोर्सिंग बॉडी होनी चाहिए, हमारे पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, ताकि हम उन लॉज को एक्सपीरियंस कर सकें, उन लॉ को एंजॉय कर सकें। और हर एक को के बीच में जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन, और जो डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो सके। सो राइट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, कोई लॉज तो बन गए, कुछ लॉज तो थे जो उन्होंने बना दिए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सॉवरेंटी जो थी वो उस गवर्नमेंट को डेलीगेट नहीं की कि वी आर गिविंग ऑल राइट्स, वी आर गिविंग ऑल powers to you that you shall govern us, you are having the supremacy, as Thomas Hobbes have given the supremacy to government, to sovereign, but they kept their sovereignty to themselves. They only introduced some laws and they gave that laws to
government, and they said them to enforce these laws over us, and you are having a duty to enforce these laws to us. Government will enforce only laws. जो laws कम्युनिटी ने बनाए हैं वो कम्युनिटी सॉवरेन कम्युनिटी रहेगी, लेकिन जो लॉज हैं वो लॉज गवर्नमेंट इन्फोर्स करेगी, और उसकी जो प्रोटेक्शन होगी वो ये होगी कि उन लॉज को कोई वायोलेंट ना करे, अगर कोई करे तो उसको वो पनिश करेगी. लॉज वुड बी ऑफ द कम्युनिटी, जो लॉज बनाएगी वो कम्युनिटी बनाएगी. गवर्नमेंट विल इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. अब गवर्नमेंट को 3 ड्यूटीज दी गई थी. दे वर गिवन द 3 ड्यूटीज टू गवर्नमेंट दैट दे वुड provide them life, security of liberty, that everybody is exercising a complete liberty, and the protection regarding the property, और उनकी प्रॉपर्टी जो थी उनको प्रोटेक्ट करेगी. ये 3 काम दिए गए थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट को. कमिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स. अब कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से थे? अब जबकि हमने देखा है थॉमस हॉब्स की स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और रोसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, उन दोनों में एक ही कॉन्ट्रैक्ट था, जबकि जॉन लॉक की थ्योरी में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अमंग सिविल सोसाइटी, जो सिविल लोग रह रहे थे, जो ऑर्डिनरी पीपल्स, कॉमन पीपल्स जो रह रहे थे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुई, और दूसरी एग्रीमेंट जो हुई वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट हुई. एक पहली जो एग्रीमेंट थी, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था, वो उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने एक स्टेट को इस्टेब्लिश किया, एक स्टेट का वजूद आया पहले कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जबकि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि हमें प्रोटेक्ट करे, हमारी लाइफ को, लिबर्टी को और प्रॉपर्टी को. कॉन्ट्रैक्ट वाज स्पेसिफिक नॉट जर्नल. जो कॉन्ट्रैक्ट था ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक था, ये जर्नल नहीं था. इसके कॉन्ट्रैक्ट की बिना पर इन्होंने अपने सारे राइट्स नहीं दिए थे, जबकि कुछ राइट्स दिए थे. वो ड्यूटीज़ और राइट्स ये थे कि उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी, उनकी लिबर्टी एक्सरसाइज हो रही है कि नहीं हो रही ये इंश्योर करेगी, और उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी. ये लॉज वो गवर्न करेंगे. बाकी जो भी सारे लॉज होंगे वो उनके पास ही रहेंगी. बाकी उनका जो भी मसाइल होंगे वो उनके खुद के पास, खुद कम्युनिटी ही सॉल्व करेगी, जबकि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा. नो एब्सोल्यूट सॉवरेन. अब जबकि देखें कि थॉमस हॉब्स ने कहा था कि सॉवरेन हैज़ अनलिमिटेड पावर्स, ही हैज़ द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ही कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर ही वांट्स. तो इन्होंने ये नहीं कहा. इन्होंने कहा है कि कोई भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा सॉवरेन के पास. सॉवरेन जस्ट ही वुड बी एनफोर्सिंग द लॉज दैट कम्युनिटी वुड गिव हिम. सॉवरेनिटी ऑफ कम्युनिटी, जो सॉवरेन होगा वो कम्युनिटी होगी, ना कि इनके पास कोई और सॉवरेन होगा. सॉवरेनिटी जो होगी वो कम्युनिटी की होगी. तो दिस वाज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जॉन लॉक. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जॉन लॉक में ये बात करता है कि जो लोग थे, मैन बाय नेचर is free, man by nature was peaceful, man by nature was cooperative, and he was having a quite sense of good and bad. उसके पास हर चीज़ की सहूलत मौजूद थी, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाते थे, वो बहुत ही रैशनल थे, डिसेंट थे, वो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते थे. लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट भी बिना पर इसलिए आए कि उनके दरमियान कोई यूनिफॉर्म लॉज नहीं थे. वो यूनिफॉर्म लॉज बनाने के लिए कि इंश्योर हो सके उनकी प्रोटेक्शन, उनकी लिबर्टी और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ. तो उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई. सबसे पहले उन्होंने एक स्टेट बनाई एक कॉन्ट्रैक्ट की तहत, और उस स्टेट के बाद उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक. तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, उस गवर्नमेंट को उन्होंने 3 फंक्शंस दिए कि दे विल प्रोटेक्ट आवर लाइफ, दे विल प्रोटेक्ट आवर प्रॉपर्टी, एंड दे विल एक्सपीरियंस आवर लिबर्टी, दैट वेदर वी आर enjoying our liberty or not, they will make sure of this thing. तो उन्होंने ये 3 काम दिए थे गवर्नमेंट को, जबकि कम्युनिटी को एज अ होल सॉवरेन रखा था, और हर एक ने अपने राइट्स जो थे वो इस कम्युनिटी को दिए थे, ना कि किसी आदमी को, ना किसी इंडिविजुअल को. इन्होंने अपने राइट्स दिए थे गवर्न करने के लिए. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये इर्रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट था, और ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट था. एक कंडीशन के तहत वो आए थे, अनकंडीशनली नहीं आए थे. किसी डेंजर की, किसी फियर की बिना पर इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो बिल्कुल ही कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट था और रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट था कि अगर गवर्नमेंट एक्सरसाइज नहीं करती, इंश्योर नहीं करती ये 3 लॉज, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकते हैं. और गवर्नमेंट जो है वो ये 3 ही चीज़ें एक्सपीरियंस करेगी, और उसके पास कोई भी और पावर नहीं होगा कि वो कोई और पावर एक्सरसाइज करे. तो दिस वाज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ लॉक. इंशाल्लाह वी वुड बी डिस्कसिंग द criticism over the social contract theory of Rousseau, Thomas Hobbes and John Locke.
इन तीनों के ऊपर जो क्रिटिसिजम्स हैं उन क्रिटिसिज्म पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।